we will discuss some certain basic operation on signals. कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक सिग्नल है, उस पर मॉडिफाई करके उसको दूसरा टाइप का सिग्नल बनाना चाहते हो या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो. सो सपोज टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x of t and y t are related by this relation. Y of t equal to x of a t minus b, where a not equal to 0, where a and b are real constant or real constant. Okay, so depending upon a and b, various operation we can perform on x of t to obtain y of t, another y of t, another signal y of t. So suppose b is 0 and a is greater than 1. So for example, assume a is 2. So suppose y of t, that is imagine y1 of t, that is x, b is 0, a is 2. So y1 of t is signal y1 of t is obtained from the x of t like this. इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि जो x of it is a compression of x of t signal. This x of 2 is compression of signal x of t. For example, you have taken a signal between -2 to +2, that is take value always, for simplicity I have taken amplitude is a constant. Okay, so this a is known as a scaling parameter. A is denoting scaling parameter, and b denotes shifting parameter. Shifting. Meter. So if you are not doing it, b0 means you are not doing the shifting, you are doing the scaling. If a greater than 1 means you are compressing the signal. अब इसको प्लॉट करना होगा y1 of t. सो अब क्या करोगे, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हो उनको स्केल फैक्टर a हियर इज 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आप देखोगे कि सारी वैल्यूज -1 से +1 के बीच में आ गई. तो ये कंप्रेस हो गया सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब what is the physical meaning of this compression? Suppose this is x of t is a audio signal. If you are producing another audio signal x of 2t, you are playing audio signal is played with twice speed. मान लीजिए इसकी, क्योंकि जो फास्टर स्पीड से आप प्ले करोगे, जैसे कि ऑडियो में आपको फास्ट करना होता है, जैसे कि आप वीडियो बहुत सारे प्लेयर यूज करते हो, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर्स, ओके, वीएलसी प्लेयर, आप देखो उसमें स्पीड बढ़ाते हो, तो 2 टाइम्स कर दोगे, 1.2 टाइम्स कर दोगे, तो आपका दिखेगा कि वो वीडियो बहुत तेज चलने लगता है, फास्टर, प्लेइंग फास्टर. सो दिस इज अ फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस कंप्रेशन ऑफ द सिग्नल. ओके, उस पूरे वीडियो को बहुत कम टाइम में आप देखना चाहते हो, सो यू आर कंप्रेसिंग द
जो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए आपका 2 घंटे का वीडियो है, अब डिपेंडिंग ऑन स्पीड you can listen same video, you can watch and listen with less time. ओके, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए बहुत तेज चलाने पे. ओके, सिमिलरली if a less than 1 and b is 0, this is called expansion of signal. Suppose you have taken a equal to 1 by 2, that is less than 1, and b equal to 2, and assuming you are producing another signal y2 of t, that is written as 1 by 2 t. अब क्या करेंगे, देखिए अब ये एक ओरिजिनल सिग्नल x of t है, नाउ स्केल बाई 1 by 2, तो a is less than 1, इस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा. तो प्लेइंग स्लोली दिस if x of t is a audio signal, if you are producing another audio playing with half speed, slowly आपको सुनाई देगा, चीजें बड़ी धीरे धीरे आपको, या वीडियो भी हाफ स्पीड से प्ले कर रहे हो, नॉर्मल स्पीड से नहीं उसके, तो आपको बहुत स्लोली चीजें आपकी दिखेंगी या सुनाई देंगी. अब देखिए इसको कैसे प्लॉट करते हैं. क्या करेंगे, जो -2 है उसको डिवाइड करेंगे 1 by 2 से, तो इट बिकम -4. सिमिलरली 2 को 1 by 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 4 एंड सो ऑन. अब देखिए -4 से +4 के बीच में सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा, पहले एग्जिस्ट कर रहा था -2 से +2, तो एक्सपेंड हो गया सिग्नल. एक्सपेंड हो गया, उसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि वो स्पीड स्लोली सिग्नल with respect to t varying. Okay, so for another case, suppose you have taken a equal to -1 and b is equal to 0, so you obtain another signal y3 of t, that is can be written x of -t. This is reflection of signal. Suppose x of t is a signal. If I will do the reflection about the vertical axis, या mirror image about this vertical axis, so I will obtain this. This is only reflection of the signal. अब क्या होगा, आप देखिए इसमें इस साइड 0 से 2 के बीच में एम्पलीट्यूड 2 है, और -2 से 0 के बीच में एम्पलीट्यूड 1 है. यदि रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी प्लस 0 से ये 2 के बीच में आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में कुछ मिस्टेक है टाइप पिक्चर्स में, लेबल्स में, सो इट्स 0 +1 एंड +2. ओके, तो जो पहले -2 और 0 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था वो एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन 0 to +2 के बीच में. ओके, सिमिलरली जो 0 से 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था वो अब एग्जिस्ट करेगा -2 से 0 के बीच में. और इसको यदि ऑडियो सिग्नल के टर्म्स में बोलेंगे, यदि आपने रिफ्लेक्ट किया ऑडियो सिग्नल में, तो यू आर प्लेइंग रिवर्स, उल्टा प्ले कर रहे हो. जो चीजें आपको बाद में सुनाई देनी थी वो पहले सुनाई देंगी. ओके, सो दिस इज फिजिकल मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल, रिवर्स प्लेइंग द ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल. Suppose a is 1, b is greater than 0. So a is 1, no scaling. Now b greater than 0 means not 0, so it is representing the shifting operation on the signal, independent variable. So depending upon b is positive and negative, there are two types of shifting, right shifting and left shifting. If b greater than 0, suppose if b is not 0, if b greater than 0, it is
representing a shifting right operation. If b less than 0 is representing left shifting operation या shifting left. ओके, तो बहुत देखेंगे हम, इसमें दोनों देखेंगे. सपोज यू हैव चूजन b equal to 2, a equal to 1. So now y4 of t is x of t minus 2. b is a 2 पॉजिटिव. सो क्या करेगा, इस सिग्नल को हम शिफ्ट करेंगे राइट बाई 2. तो जो -2 पे रहेगा उसमें +2 ऐड करेंगे तो वो 0 पे चला जाएगा, और जो 2 पे था उसमें +2 ऐड करेंगे, हर पॉइंट्स में ऐड कर देंगे तो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड अबाउट द ओरिजिन. ओके, ये लेफ्ट एंड राइट अबाउट द ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट जाएगा सिग्नल मूव करेगा कि ओरिजिन के राइट मूव करेगा. ओके, एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन आल्सो नोन एज डिलेड ऑपरेशन. इसको कैसे समझेंगे कि जो -2 सेकेंड पे प्ले होना था सिग्नल, ऑडियो सिग्नल है, वो आप सुनाई देगा t = 0 पे, तो डिलेड हो गया ना. या यू कैन अंडरस्टैंड, जो सिग्नल 2 सेकेंड पे सुनाई देना था वो अब सुनाई दे रहा 4 सेकेंड पे, तो ये डिले हो गया. सो इट इज shifting right operation is also known delayed operation. If b is less than 0, suppose in this case I can define x t minus -1 1. So b is a negative. So here b is a -1, b is a -1. b नेगेटिव, तो आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करना है. तो उसमें क्या, सपोज x of t is this signal, I want to y5 of t that is equal to x t plus 1. तो b इस केस में -1 नेगेटिव होगा, तो हमें पता कि लेफ्ट शिफ्ट करना है. तो जो -2 होगा वो शिफ्ट बाई 1, सो इट विल रीच टू द -3. जो 2 होगा उसमें से एक सब में से जितने से -2 को -1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 को -1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और उनकी वो वैल्यूज मिल जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. ओके, तो जो 0 पे था वो -1 पे चला जाएगा, जो -1 पे था वो -2 पे चला जाएगा, -2 वाला -3 पे चला जाएगा. इस तरह हम सिग्नल प्लॉट कर सकते हैं. अब ये देखेंगे कि शिफ्टिंग लेफ्ट ऑपरेशन आल्सो नोन एज एडवांस ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो पहले ये एडवांस एंड डिले विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के हम कंसीडर करते हैं. आप ओरिजिनल सिग्नल में देखोगे 0 जो सिग्नल जो जीरोस पे सुनाई देना था, यदि ऑडियो सिग्नल है, वो अब सुनाई दे रहा -1 पे. तो एडवांस में प्ले कर दिया आपने सिग्नल, ये सिग्नल की वैल्यू मिल गई. ओके, तो इट इज एडवांस ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ कभी कभी क्या होता है, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ करने होते हैं, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग. ओके, सो दिस इज डिफाइंड y of t equal to x a t minus b, where a not equal to 0 and b can be 0 and b can be non-zero. तो y of t को इसमें शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों करनी है. इन जब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल केस में ये ऑपरेशन, ये जो चीज सिग्नल है ऑपरेशन, शिफ्टिंग और स्केलिंग को ऑर्डर हमें 2 तरीके से किया जा सकता है, कि शिफ्टिंग को पहले करें कि स्केलिंग को पहले करें. इनके ऑर्डर को हमें चूज करना हो. यहाँ पे हम जो डिस्कस किए तो वहां पे हम स्केलिंग शिफ्टिंग इंडिविजुअली डिस्कस किया था. हम ज्वाइंटली कैसे इसको करेंगे इस ऑपरेशन को, ये बहुत सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम इस टाइप के सिग्नल पे ऑपरेशन करके प्लॉट करना होगा आपको. ओके, सो यू शुड फेमिलियर विद दिस ऑपरेशन. तो सपोज
you have chosen A equal to 2 and B is equal to 2, so you have this signal. ओके अब क्या है कि इसको जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी माइनस बी बाई ए, अब दिस, तो इसके एक और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। तो जब आप शिफ्टिंग और स्केलिंग में कौन सा ऑपरेशन पहले कर रहे हो उसके हिसाब से हम उसका ध्यान देना होगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा फाइनल सिग्नल। अदरवाइज we will not doing the proper shifting and scaling. So suppose I want to do the scaling first. Suppose I have scaled x of t by a, then time shift by b by a. यदि स्केलिंग आपने पहले कर दी है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल केस में, तो आपको जो शिफ्टिंग करनी होगी b by a से करनी होगी, या आपने पहले शिफ्टिंग की है उसके बाद में स्केलिंग करनी है, तो आपको शिफ्ट करना है बी से और स्केल करना ए से। दोनों मेथड से आप सेम सिग्नल y ऑफ t ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, सो लेट अस शो दिस। सपोज x ऑफ t है, ये ओरिजिनल सिग्नल है। नाउ आई वांट टू ऑब्टेन y ऑफ t। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग बाई 2 कर दिया। -2 से +2 के बीच की सिग्नल को हमने -1 से +1 के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस केस में जो शिफ्टिंग करनी होगी b बाई a से करनी होगी, दैट इज 2 बाई 2, दैट इज 1, और b बाई a इज अ पॉजिटिव, तो आई हैव टू डू राइट शिफ्ट। ओके, तो आप इसको राइट शिफ्ट कर दो। -1 की वैल्यू 0 पे चलिए, 0 की वैल्यू 1 पे, 1 की वैल्यू 2 पे चली जाएगी। ओके, आई विल ऑब्टेन दिस। अब इसी में हम पहले शिफ्टिंग 2 से करते हैं। तो इफ आई शिफ्ट बाई 2, सो -2 विल रीच टू, जो वैल्यू -2 पे थी वो 0 पे चली जाएगी, जो 2 पे थी वो 4 पे चली जाएगी, और उसके बाद 2 से स्केल करेंगे। अब देखिए दोनों से सेम सिग्नल मिलेगा। ओके, तो पहले क्या शिफ्टिंग कर रहे हो कि स्केलिंग कर रहे हो, उसका ध्यान रख के उसके हिसाब से आपका शिफ्टिंग स्केलिंग पैरामीटर को कंट्रोल करना, मतलब लेना होगा, चूज करना होगा। ओके, डिस्क्रीट टाइम केस, इसमें एक ही मेथड है, जबकि कंटिन्यूस टाइम में दोनों पॉसिबल है कि पहले शिफ्टिंग भी कर सकते हो उसके बाद स्केलिंग करोगे, या पहले शिफ्टिंग कर दो उसके बाद स्केलिंग करो। लेकिन डिस्क्रीट टाइम केस में always we will do the shifting and then I will do resulting signal to scaling. now resulting signal को जो shift के बाद जो resulting signal मिलेगा उसको scale करते हैं, that is the difference. So suppose you have a equal to 2 and b is equal to 3, so I want to obtain y of n from x of n. So first I will shift right by 3, b पॉजिटिव है तो आई विल शिफ्ट राइट। सो -2 की जो वैल्यूज थी वो +1 पे चली जाएंगी, और 2 की जो वैल्यू थी वो 5 पे चली जाएगी। नाउ आई विल स्केल। स्केल में देखना है इसमें क्या होता है, डेसिमेट, मतलब ये कंप्रेस हो गया ना, तो इसमें जो 1 2 3 4 5 पहले थे इसमें शिफ्ट के बाद, या ओरिजिनली 5 सैंपल्स थे, पॉइंट्स थे, वो आप बन के रह जाएंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स। डेसिमेट हो गया, कंप्रेस हो गया। ओके, डिटेल में सिग्नल सिस्टम में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम इन ऑपरेशंस को करेंगे तो हमें ये ऑपरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हर सिस्टम के आउटपुट पे हमें जो ऑपरेशन के बाद सिग्नल मिलेगा उसको हमें प्लॉट करना होगा। ओके, तो ये ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। और रेफरेंस टेक्स्ट बुक, आई विल रिकमेंड यू कैन परचेज दिस बुक, मॉडर्न डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम 4th एडिशन या 5th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बीपी लाठी, फॉर दिस कोर्स। ओके, these are references. Thank you for listening.